بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوکری حاصل کرنے کی خواہش میں احمد انٹرویو دینے گیا اور اس نے آسانی سے پہلا انٹرویو پاس کر لیا، لیکن اب آخری انٹرویو کمپنی کے ڈائریکٹر کو لینا تھا۔ جیسے ہی ڈائریکٹر کمرے میں داخل ہوا تو فضا میں ایک الگ سی سنجیدگی چھا گئی۔ احمد کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ یہ اس کی زندگی کے سب سے اہم لمحات میں سے ایک تھا۔ ڈائریکٹر فاروق ایک پرسکون اور باوقار شخصیت کے طور پر کمرے میں آئے۔ ان کی موجودگی سے ہی ماحول میں ایک ڈسپلن اور روح کا احساس پیدا ہو گیا۔ احمد نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی اور ڈائریکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈائریکٹر نے سیدھا احمد کے سامنے رکھی ہوئی فائل یعنی اس کا بایو ڈیٹا اٹھایا۔ ان کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، جس کی وجہ سے احمد کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ کمرے میں چھائی خاموشی احمد کے لیے ایک امتحان کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ایک کڑی آزمائش بن گیا تھا۔ جب ڈائریکٹر فاروق نے احمد کا سی وی دیکھا تو پایا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ طالب علم دیگر سرگرمیوں میں بھی ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے احمد نے شاید محسوس بھی نہ کیا۔ یہ سی وی صرف کتابی علم کا ثبوت نہیں تھا، بلکہ ایک ہمہ جہت صلاحیت اور محنتی انسان کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ ڈائریکٹر نے اپنی انگلی فائل پر رکھی اور ایک خاص نقطے پر چند لمحے رکے، جیسے وہ احمد کے کردار اور صلاحیتوں کو پرکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی نظر سی وی سے ہٹا کر احمد پر جمائی اور پہلا سوال کر ڈالا، جو بالکل غیر متوقع تھا اور براہ راست احمد کی پس منظر سے جڑا ہوا تھا۔ کیا تمہاری پڑھائی اسکالرشپ پر ہوئی ہے؟ احمد کو یہ سوال کچھ عجیب لگا، کیونکہ اس کی پڑھائی ذاتی سطح پر ہوئی تھی۔ اس نے سوچا شاید ڈائریکٹر فاروق اس کی مالی حالت یا اس کے خود انحصاری کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں۔ احمد نے بغیر کسی جھجک کے پورے اہتمام سے جواب دیا، جی نہیں۔ ڈائریکٹر فاروق نے اپنی بھویں ہلکی سی اوپر اٹھائیں، جیسے وہ کچھ اور توقع کر رہے ہوں یا شاید احمد کے سیدھے جواب سے متاثر ہوئے ہوں۔ یہ سوال دراصل احمد کے عزم اور لگن کو پرکھنے کے لیے تھا کہ آیا اسے پڑھائی کے لیے کوئی بیرونی مدد ملی تھی یا نہیں۔ پھر ڈائریکٹر نے دوسرا سوال پوچھا، جو احمد کے خاندان خصوصاً اس کے والد کے کردار سے متعلق تھا۔ اسکول اور کالج کی فیس تمہارے والد ہی ادا کرتے تھے؟ احمد کو لگا کہ اب انٹرویو اس کی ذاتی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اسے اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ اس نے فخر کے ساتھ اپنے والد کے کردار کو تسلیم کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد نے اس کے لیے کتنی جدوجہد کی تھی۔ جی ہاں سر، احمد نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں اپنے والد کے لیے گہرا احترام اور شکر گزاری جھلک رہی تھی۔ ڈائریکٹر فاروق نے احمد کا جواب بغور سنا۔ ان کے چہرے پر ایک سوچ بڑی کیفیت تھی۔ یہ سوال دراصل یہ جاننے کے لیے تھا کہ احمد اپنی کامیابی کا سہرا کس کو دیتا ہے اور وہ اپنے خاندان کی قربانی اور تعاون سے کتنا واقف ہے۔ ڈائریکٹر نے اگلا سوال کیا، تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ احمد نے بغیر کسی جھجک اور شرمندگی کے جواب دیا۔ حالانکہ یہ ایسا کام تھا جسے معاشرے میں اکثر کمتر سمجھا جاتا ہے اور جس میں بہت محنت لگتی ہے۔ احمد نے کہا، میرے والد لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں۔ اس جواب کے بعد کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ڈائریکٹر فاروق نے احمد کے چہرے پر غور سے دیکھا، جیسے اس کے جواب پر دل ہی دل میں کوئی رد عمل دے رہے ہوں۔ احمد کو اپنے والد کے کام پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ اسے فخر تھا کہ اس کے والد نے اتنی محنت سے اسے پڑھایا اور اس کے لیے زندگی کی سہولتیں فراہم کی۔ یہ جواب ڈائریکٹر فاروق کے لیے ایک غیر متوقع انکشاف ہو سکتا تھا اور اس لمحے وہ احمد کی پس منظر کو نئے زاویے سے دیکھنے لگے۔ یہ جواب سن کر ڈائریکٹر فاروق نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ احمد کچھ حیران ہوا، لیکن فوراً اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا۔ ڈائریکٹر نے احمد کے ہاتھوں کو چھوا، جو ریشم کی طرح نرم اور نازک تھے۔ ان کے چہرے پر ایک سوچ بڑا تاثر تھا، جیسے وہ کسی چیز کا موازنہ کر رہے ہوں۔ احمد کے ہاتھ دیکھ کر یہ بالکل واضح تھا کہ اس نے کبھی کوئی جسمانی مشقت کا کام نہیں کیا۔ یہ بات ڈائریکٹر فاروق کے ذہن میں کئی سوال پیدا کر رہی تھی، کیونکہ وہ ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو صرف کتابی علم ہی نہ رکھتا ہو، بلکہ زندگی کی حقیقتوں اور محنت کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہو۔ احمد کے ہاتھوں کی نرمی اس کے والد کی سخت محنت بڑی زندگی سے بالکل متضاد تھی۔ فاروق صاحب نے اگلا سوال کیا، کیا تم نے کبھی اپنے والد کے ساتھ کپڑے دھونے میں مدد کی ہے؟ احمد نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، کیونکہ اس کے والد نے
हमेशा उसे इन कामों से दूर रखा और सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देने के लिए हौसला अफजाई की। अहमद ने कहा, जी नहीं, मेरे वालिद हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं। अहमद ने बात आगे बढ़ाई और अपने वालिद की महारत का भी जिक्र किया। हाँ, एक बात और, मेरे वालिद बहुत तेजी से कपड़े धोते हैं। ये सुनकर फारूक साहब ने अहमद के चेहरे पर दोबारा गौर से नजर डाली, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रहे हों कि अहमद की जिंदगी उसके वालिद की जिंदगी से कितनी मुख्तलिफ रही है और उसने कभी मेहनत का जाती तजर्बा नहीं किया। फिर डायरेक्टर ने कुछ लम्हे सोचा और एक अजीब सा मुतालबा किया, क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? अहमद को तजस्सुस हुआ और उसने फौरन जवाब दिया, जी कहिए। उसे लगा शायद ये उसकी नौकरी से मुताल्लिक कोई और टेस्ट होगा या उसकी सलाहियत का मजीद जायजा लेने का तरीका। फारूक साहब ने कहा, आज घर जाकर अपने वालिद के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे मिलना। अहमद ये सुनकर बेहद खुश हुआ। उसे लगा कि नौकरी तो अब पक्की है, तभी तो डायरेक्टर ने उसे दोबारा बुलाया है। ये काम उसे बहुत आसान लगा और वो उस मौके पर बहुत पुरजोश हो गया। उसे ये मालूम नहीं था कि ये काम उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल डालेगा और ये सिर्फ नौकरी का वादा नहीं बल्कि एक गहरा जिंदगी का सबक था। घर आकर अहमद ने खुशी खुशी अपने वालिद को सब बातें बताई और उनसे कहा कि वो अपने हाथ दिखाएं। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत और लगन रंग ला रही है और कामयाबी करीब है। वालिद को थोड़ी हैरानी हुई कि अचानक बेटे को उनके हाथ धोने की क्या जरूरत पड़ गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्यारे बेटे की ख्वाहिश का एहतराम किया और बगैर किसी सवाल के अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। वालिद ने हमेशा अहमद का साथ दिया था और इस बार भी उन्होंने उसकी हर ख्वाहिश का मान रखा। अहमद ने सोचा कि ये तो एक छोटा सा काम है जिसे करके वो कल अपने ख्वाबों की नौकरी हासिल कर लेगा। उसे खुशी थी कि उसने अपने वालिद को भी इस खुशी का हिस्सा बनाया और वो कल के लिए और भी पुरजोश हो गया। लेकिन जब उसने वालिद के हाथ आहिस्ता आहिस्ता धोना शुरू किए तो इब्तिदा में उसे एक आम सा काम लगा, मगर जैसे जैसे वो हाथ धोता गया उसे एक चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। वालिद के हाथ पत्थर की तरह सख्त और जगह जगह कटे हुए थे, उन पर बेशुमार छाले और निशान थे। ये देखकर अहमद दंग रह गया। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। उसे अपने वालिद की जद्दोजहद का पहले कभी इतना गहरा अंदाजा नहीं था। यहाँ तक कि जब भी वो जख्मों के निशानात पर पानी डालता तो जलन का एहसास वालिद के चेहरे पर साफ झलकने लगता। ये मंजर देखकर अहमद का दिल और भी पिघल गया। उसे पहली बार अपने वालिद की मेहनत और कुर्बानी का हकीकी एहसास हुआ। ये उसके लिए आंखें खोल देने वाला लम्हा था। अहमद को जिंदगी में पहली बार ये अदराक हुआ कि यही वो हाथ है जो रोज दूसरों के कपड़े धो धो कर उसके लिए अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और स्कूल की फीस का बंदोबस्त करते हैं। उसके बालक के हाथों की हर कटी फटी जिल्द, हर जख्म और हर छाला उसकी जिंदगी की हर आसाइश और कामयाबी की निशानी थी। वालिद के हाथ का हर छाला और हर सख्ती उसके तालीमी कैरियर की हर कामयाबी और उसके रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद का सबूत था। अहमद को अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने कभी अपने वालिद की मेहनत को ना समझा और हमेशा आरामदेह जिंदगी जीता रहा। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसने कभी अपने वालिद की मदद नहीं की थी। ये लम्हा उसके लिए एक तब्दीली का लम्हा था, जहाँ उसने अपने वालिद की कुर्बानियों को दिल की गहराई से महसूस किया। वालिद के हाथ धोने के बाद अहमद को खुद अंदाजा न हुआ कि कब उसने उस दिन के बाकी सारे कपड़े भी एक एक करके धो डाले। ये ऐसा काम था जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया था और शायद कभी सोचा भी नहीं था। वालिद बार बार रोकते रहे, लेकिन अहमद अपनी लगन में कपड़े धोता चला गया। उसे अपने वालिद की जद्दोजहद का इतना गहरा एहसास हुआ कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो अपने वालिद के दर्द और मेहनत को महसूस कर रहा था और उसने उनकी मेहनत में शरीक होने की कोशिश की। ये सिर्फ कपड़े धोने का अमल नहीं था, बल्कि तौबा और खुद एहतसाबी का अमल था। उस दिन उससे सिर्फ कपड़े ही नहीं धोए, बल्कि अपने दिल की मैल भी साफ की और अपने वालिद के लिए गहरा एहतराम और शुक्रगुजारी का इजहार किया। उस रात बाप बेटे ने देर तक बातें की। ये गुफ्तगू उन 7 सालों की कमी को पूरा कर रही थी, जहां अहमद ने कभी अपने वालिद की जद्दोजहद के बारे में नहीं पूछा था और वालिद ने कभी अपने दर्द को खुलकर नहीं बताया था। अहमद ने अपने वालिद से उनके काम की मुश्किलात और कठिनाइयों के बारे में पूछा और वालिद ने अपनी कुर्बानियों, मेहनत और अपने बेटे के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाबों के बारे में बताया। ये पहला मौका था जब उन्होंने इतनी खुलकर और सच्चाई से बात की।
उसने उनके रिश्ते को नई गहराई दे दी। अहमद ने अपने वालिद की कुर्बानी और इसार को समझा और वालिद ने अपने बेटे के लिए अपनी मोहब्बत और ख्वाहिशात को बयान किया। ये बातचीत महज अल्फाज का तबादला नहीं थी, बल्कि जज्बात का गहरा मिलाप था, जिसने उनके दरमियान की दूरी को मिटा दिया और एक मजबूत रिश्ता कायम कर दिया। अगले दिन अहमद दोबारा नौकरी के लिए कंपनी में डायरेक्टर फारूक के दफ्तर पहुंचा, लेकिन इस बार वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एतमाद नहीं बल्कि संजीदगी, हसासियत और आजिज़ी भी थी। फारूक साहब का सामना करते हुए अहमद की आंखें नंग थीं, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि शुक्रगुजारी, समझ और खुद एहतसाबी के थे। उसने एक ऐसी हकीकत को जाना था जो उसकी जिंदगी में पहले कभी नहीं आई थी, एक ऐसा तजर्बा जिसने उसके दिल को छू लिया था। वो अब सिर्फ तालीमी तौर पर कामयाब तालिब इल्म नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने जिंदगी के कठिन तजर्बात को महसूस किया और उनसे सीखा। वो अपने अंदर एक गहरी तब्दीली महसूस कर रहा था और ये तब्दीली उसके चेहरे पर वाज़ेह दिखाई दे रही थी। वो जानता था कि ये इंटरव्यू अब सिर्फ नौकरी के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी के एक ऐसे बड़े सबक के बारे में है। फारूक साहब ने अहमद के चेहरे पर बदलते तासुरात को देखा और फौरन समझ गए कि कुछ अहम हुआ है। फिर उन्होंने पूछा, हाँ तो फिर कैसा रहा कल घर पर? क्या तुम अपना तजर्बा मेरे साथ शेयर करना चाहोगे? उनकी आवाज में नरमी और गहरी दिलचस्पी थी। फारूक साहब अहमद के तजर्बे को सुनने के लिए बेहद मुश्ताक थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये महज एक काम नहीं बल्कि एक इंसानियत की आजमाइश थी। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी, बल्कि अब उसमें संजीदगी, आजिज़ी और जज्बाती हसासियत थी। वो अपने तजर्बात पूरी सच्चाई के साथ बांटना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि ये उसके लिए कितना अहम है और उसने इसे कितना बदल दिया है। अहमद ने कहा, जी हाँ सर, कल मैंने जिंदगी का एक हकीकी सबक सीखा। उसकी आवाज में तबक्कुफ था, जैसे वो हर लफ्ज को महसूस कर रहा हो और उसे बयान करने के लिए मुनासिब अल्फाज का इंतखाब कर रहा हो। उसने अपने तजर्बे को 3 नुकात में तकसीम किया। पहला, मैंने ये सीखा कि शुक्रगुजारी क्या होती है। अगर मेरे वालिद ना होते तो मैं तालीम में इतना आगे नहीं आ सकता था। अहमद को यह एहसास हुआ कि वालिद की मुसलसल मेहनत और कुर्बानी के बगैर उसकी कामयाबी नामुमकिन थी। ये उसके लिए एक गहरा अतराफ था, क्योंकि उसने पहले कभी अपने वालिद की कुर्बानियों को इस तरह ना समझा था। वो अब अपने वालिद के लिए हकीकी और गहरी शुक्रगुजारी का इजहार कर रहा था और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक था। दूसरा, वालिद की मदद करने से मुझे मालूम हुआ कि कोई काम करना कितना मुश्किल होता है। उसने इस जिस्मानी और जज्बाती मुशक्कत को समझा जो उसके वालिद रोजाना बगैर किसी शिकायत के करते रहे। उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में कभी ऐसी मेहनत नहीं की। तीसरा, मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत से महसूस की। अहमद ने अपने वालिद के साथ उस रात की जज्बाती गुफ्तगू का भी जिक्र किया, जिससे उनके रिश्ते को एक नई गहराई दी। उसे ये एहसास हुआ कि खानदान और रिश्ते ज़ाती कामयाबी से कहीं ज़्यादा अहम है। ये तजर्बा उसके लिए जज्बाती तौर पर तब्दीली लाने वाला था, जिसने उसे ज़्यादा हसास, मेहरबान और इंसान दोस्त बना दिया। फारूक साहब ने अहमद की बातें बड़ी तवज्जो से सुनी। उनके चेहरे पर इत्मीनान झलक रहा था। उन्होंने अहमद की बातों से इत्तफाक किया और कहा, यही सब मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो सिर्फ तालीमी काबिलियत या तकनीकी महारत को नहीं बल्कि इंसानी सफ़ात, हमदर्दी और इखलाकी इक़दार को भी अहमियत देते हैं। मैं ये नौकरी इसी शख्स को देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कदर करे, जो काम के दौरान दूसरों के दुख को भी महसूस करे और जो सिर्फ पैसे को ही जिंदगी का मकसद ना समझे। फारूक साहब अहमद के बदले हुए रवैये को मुकम्मल तौर पर समझ चुके थे और उससे बेहद मुतासिर हुए। यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि किरदार और इंसानियत की आजमाइश थी, जिसमें अहमद पूरी तरह कामयाब रहा। फिर फारूक साहब ने मुस्कुराकर अहमद की तरफ देखा और कहा, मुबारक हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। अहमद की आंखें खुशी और शुक्रगुजारी के आंसुओं से भर आई। उसे ना सिर्फ ख्वाबों की नौकरी मिली थी बल्कि एक अनमोल सबक भी मिला था जो किसी किताब में नहीं पढ़ाया जा सकता। ये तजुर्बा उसे जिंदगी भर याद रहेगा और ये उसे एक बेहतर इंसान, ज्यादा हसास चेहरी और मेहरबान फर्द बनने में मदद देगा। उसे अब समझ आ गया था कि असल कामयाबी सिर्फ बैरूनी कारनामों में नहीं बल्कि अंदरूनी तरक्की, दूसरों के लिए हमदर्दी और रिश्तों की गहराई में है। दोस्तों, बाप की मोहब्बत एक पोशीदा पुल है जो हमें जिंदगी की हर खलीज से पार कराता है। उनकी सख्त मेहनत और कुर्बानी का हर कतरा हमारे ख्वाबों की आबियारी करता है।
नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।